It's 9.2, and with 30 balls left, the question is, what is going to be the strategy? Malinga has 1 over to go, Matthews has 2, De Silva has 3, and Kumara 2. As we watch Hasaranga starting his 4th and final over, and the man on strike is Manish Pandey. In goes Hasaranga and bowls the first ball, pushing it in quickly. Caught him a bit by surprise there, and Pandey having to jab down on it and keep it away. Manages to do so. Muted appeal from Hasaranga, and there is no chance of a run. So last 4 overs, Shama, who's right on the button, 35 runs. Sandakan's bowling, and this one's been hit away nicely, but not beating the man at deep mid wicket there. Gunathilake doing a good job moving quickly to his left, and just a single there for Pandey. Slightly round arm, so a little bit difficult to hit down the ground unless you're really up to the pitch of the ball. And so Pandey just gets a run. It's 139 for 4, and now Kohli on strike to Hasaranga. Here's Hasaranga in, bowls, and Kohli to a ball that's outside the off stump. Won't be able to beat the man at the squarer of the two short third men, or almost a short backward point, you might call it, on the edge of the circle. And score remains 139 for 4. Kohli is 9, Pandey is 9 as Hasaranga bowls, and Kohli whips it on the onside. He'll pick up a run, and there'll be one more to be had. 140 now for 4 as the 16th over approaches its end, with Kohli on 10, Pandey on 9, the partnership worth 18, and the current run rate for the first time in a while now drops below 9. And this one's cut away square and back of the point area, and they'll come back for the second. Pandey very quick between the wickets, and of course Virat Kohli is like a hare, and the batsman completing the second run quite comfortably. 142 for 4. So Shreyas Iyer and Sanju Samson, the two disappointments today, started off with big shots and fell almost immediately thereafter. Next one coming back into Pandey, who is unable to beat the man at short third, and that will be the end of Hasaranga's spell. 4 overs, 1 for 27 for him, and that also marks the end of the 16th over. 142 for 4. आकाशवाणी पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का सजीव प्रसारण FM रेनबो नेटवर्क, FM लोकल रेडियो स्टेशन और DRM पर। तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन आकाशवाणी पर। तो कुल मिलाकर 24 गेंदें फेंकी जाने बाकी हैं इस मुकाबले के अंदर। भारत का स्कोर क्या होगा? क्या 200 के पार या 200 के नीचे या उसके आसपास? 3 संभावनाएं, और इन संभावनाओं को किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे ये बल्लेबाज ये देखना होगा। विराट कोहली इस समय 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, मनीष पांडे 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। मैक्सिकन वेव्स इस समय दिखाई देती हुई बीच बीच में। एक लहर के तौर पर एंजेलो मैथ्यूज को गेंदबाजी के लिए वापस लाया गया है। एंजेलो मैथ्यूज ने इससे पहले सिर्फ 2 ओवर किए हैं, लसित मलिंगा ने 3 ओवर किए हैं, यानी कि मैथ्यूज के 2 ओवर बाकी हैं, मलिंगा का 1 ओवर बाकी है। जाहिर है कि इन दोनों का इस्तेमाल होगा। हो सकता है कि कुमारा का अगर कोटा पूरा नहीं हुआ हो तो उनका भी इस्तेमाल किया जाए। और इस बार इस गेंद को हल्के से शफल करते हुए केवल शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खेला। कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था। तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। बढ़िया 2 रन। 1 रन निश्चित था, दूसरा रन जिसे रन चुराना कहते हैं वो तकरीबन वही रन था। काफी तेजी के साथ दोनों ने पहला रन पूरा किया और उसके बाद दूसरा रन भी दौड़ करके पूरा कर दिया। पुणे का स्टेडियम इस समय दूधिया प्रकाश में जगमगा रहा है और जुगनुओं सी पूरी रोशनी स्टेडियम में बिखरती हुई, और उसी रोशनी के बीच ये छक्का। विराट कोहली बिल्कुल गेंद के पीछे आए, अच्छी खासी बैकलिफ्ट के साथ ये सीधा छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। भारत ने 150 का आंकड़ा भी छू लिया। पूरा स्टेडियम इस समय जुगनुओं की तरह जगमगा रहा है। मोबाइल की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो हर दर्शक ने इस समय निकाली हुई है, और बहुत ही खूबसूरत नजारा। भारत के 150 रन, विराट कोहली के बल्ले से निकला छक्का, तो ये नजारा होना ही है। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है, और जो फील्ड प्लेसमेंट है कम से कम ऑन साइड की।
एक फाइन लेग थ्रो सा शॉट जहां पर खड़े हुए हैं, और इस बार इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग पर। एक लौता रन वहां पर पूरा किया विराट कोहली ने। विराट कोहली पहुंच गए 19 पर। भारत का स्कोर 151, 4 विकेट पर। 150 रन भारत ने 16.2 ओवर में बनाए। कुल मिलाकर 15 चौके और 4 छक्के इस दौरान लगाए हैं। श्रीलंका ने पिछला मुकाबला जो भारत से खेला था, कुल 15 चौके उन्होंने लगाए थे, तो वो उसकी बराबरी तो भारत कर चुका है अब तक। लेकिन भारत का लक्ष्य इस समय कहीं ना कहीं 200 की दहलीज का होगा। मैथ्यूज 31 रन अब तक दे चुके हैं, और इस बार थोड़ा सा यॉर्क कराने की कोशिश की थी। गेंद की गति में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया था मैथ्यूज ने, और बहुत अच्छे तरीके से इसे भापा और सिर्फ अपने बल्ले के निचले हिस्से से लगने दिया। मनीष ने, वो पहुंच गए 12 पर। भारत 152, 4 विकेट पर। विराट कोहली 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। नजदीकी खिलाड़ियों में अब कोई भी नहीं है, क्योंकि अब विकेट से ज्यादा रन बचाने की इस समय कवायद। मैथ्यूज, उनका अनुभव, उनका तजुर्बा कितना लाभ लेते हैं उसका, लेकिन यहां पर गेंद सीधे 4 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। विराट के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, और इसके साथ ही विराट ने T20 क्रिकेट में अपना 250वां चौका भी लगा दिया है। सबसे ज्यादा चौके विराट के नाम हैं। रमेश परब, हमारे स्टैटिस्टिशियन, बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 74 छक्के भी इस दौरान विराट के बल्ले से निकले हैं। कुल मिलाकर 79 मैचों में एक लौते बल्लेबाज जिन्होंने 250 चौके लगाए हैं T20 क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए, और एक भी सेंचुरी उनके नाम नहीं। यहां पर फिर गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक उन्होंने पहुंचाई, लेकिन फील्डर वहां मौजूद था, और इसलिए 2 रन का मौका। 158, 4 विकेट पर। ओवर की समाप्ति मैथ्यूज के काफी खर्चीले साबित हुए हैं। मैथ्यूज 3 ओवर में अब तक उन्होंने 38 रन दे दिए हैं, और कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली है। ओवर समाप्त। होगा दुगना चौगना आपका व्यापार, अगर आप बनाएंगे विज्ञापन को आधार, पूरे देश में फैलेगा आपका कारोबार। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। तो इस समय पारी का 18वां ओवर शुरू हो रहा है। भारत की तारीफ इसलिए भी करनी होगी कि रनों का औसत उन्होंने गिरने नहीं दिया है। बीच में एक के बाद एक 3 विकेट हमने गिरते हुए देखे, लेकिन इसके बावजूद औसत नीचे नहीं आया, और यही जरूरी होता है T20 या लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। कुमारा का ये गेंद, और एक टप्पा खाते हुए सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। मनीष पांडे के बल्ले से निकला हुआ आक्रामक स्ट्रोक। मनीष पांडे को, सिर्फ मनीष पांडे ही क्या, संजू सैमसन को तो आज बहुत ही लंबे समय के बाद मौका मिला था, और तकरीबन कमर की ऊंचाई तक आती हुई गेंद को पूरी ताकत के साथ मिड विकेट पर निकाला था। कुमारा की इस गेंद को फिर तकरीबन उसी शैली से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद गई सीधे अविष्का फर्नांडो के पास, जो कि लॉन्ग ऑन पर खड़े थे। अविष्का फर्नांडो ने गेंद को फील्ड किया, और बल्ले में शायद कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं मनीष। बहुत खुश नहीं अपने बल्ले से, ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरे बल्ले की मांग की है। 163, 4 विकेट पर। कोहली 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। मनीष पांडे ने अब तक 17 रन बनाए हैं। सत्रह रन मनीष पांडे के 12 गेंदों पर, और कोहली के 25 रन 16 गेंदों पर। यानी कि T20 के लिए जिस औसत की दरकार है, तकरीबन उसी औसत से खेलते हुए दोनों बल्लेबाज। कुमारा की यह गेंद, और इस बार हवा में लहराई जरूर, लेकिन बमुश्किल 2 कदम पीछे रह गए वहां पर। गुना तिलके का थ्रो स्टंप्स को बिखेर गया, और इसके साथ ही हमें इंतजार करना होगा। इंतजार क्या, बल्लेबाज खुद धीरे धीरे पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि डिसीजन पेंडिंग है।
दूसरा रन लेने की कोशिश की गई थी और काफी लंबा, कम से कम 1 मीटर के आसपास का फासला रह गया था। तो इस तरह से भारत ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया। फॉलो विकेट इज स्पॉन्सर्ड बाय LIC। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। All India Radio brings you live action of India-Australia 3 one-day international cricket match on FM Rainbow Network, FM local radio station and DRM. Don't forget, just tune into All India Radio. तो वॉशिंगटन सुंदर अब आए हैं विराट कोहली के आउट होने के बाद 164, 5 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर में भी 3 गेंदें बाकी हैं। वॉशिंगटन सुंदर निचले क्रम के एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में अपने आप को पहले ही साबित कर चुके हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और देखना है कि आज बल्ले के बाद गेंद का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वॉशिंगटन। कुमारा मध्यम तेज गति के गेंदबाज, कुमारा का ये 3रा ओवर है, यानी कि अब शायद स्पिनर्स को नहीं लाएं और उसकी कोई गुंजाइश भी दिखती नहीं है। मलिंगा, कुमारा, इनके ओवर्स अभी बाकी हैं और इस बार हवा में गेंद सीधे चली गई स्क्वायर थर्ड मैन के पास। तो चलिए, भारत का एक और विकेट गिरता हुआ। वॉशिंगटन सुंदर पहली गेंद पर टप्पा खाने के बाद आखिरी लम्हों में उन्होंने अपना बल्ला लगाया और इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि वहां फील्डर मौजूद। फॉलो विकेट इज स्पॉन्सर्ड बाय LIC। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आकाशवाणी पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का सजीव प्रसारण FM रेनबो नेटवर्क, FM लोकल रेडियो स्टेशन और DRM पर। तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन आकाशवाणी पर। तो भारत ने अपना 6वां विकेट गंवा दिया है 164, 6 विकेट के नुकसान पर। यह है भारत का स्कोर। प्रकाश, अब तक की जो स्थिति थी, श्रीलंका कहना होगा कि पिछले कुछ ओवर्स में उन्होंने वापसी की शुरुआत जरूर की है। That's the beauty of T20 cricket, isn't it, Sanjay? That just need a couple of smart bits of fielding, as we saw with Virat Kohli's rather injudicious choice of the second run and running himself out, and then Washington Sundar, you really can't blame him. The ball was there to be played. He played it down in the throat of short third man, deep third man on the boundary, and India now find themselves in more than just a spot of bother. तो पहला विकेट 97 के स्कोर पर गिरा, लेकिन उसके बाद अब 6 विकेट भारत ने गंवा दिए हैं। कुमारा की ये गेंद और इस बार थोड़ा सा शफलिंग की और गेंद को एन वक्त पर इम्प्रोवाइज्ड खेला और सीधे गई थर्ड मैन की दिशा में इकलौते रन के लिए। पांडे पहुंच गए 18 पर। भारत 165, 6 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद आ रही है। इसके बाद सिर्फ 12 गेंदें होंगी। उन 12 गेंदों पर क्या भारत 200 के लक्ष्य के आसपास पहुंचेगा? लक्ष्य तो कतई नहीं, लेकिन हाँ, एक स्कोर सेट करने का जो लक्ष्य है वो कितना जा पाता है भारत का, ये देखना होगा।